Good morning to all my dear students and all my dear viewers. You all are welcome to Mithra Sir classes of English. Today's class is on Merchant of Venice. This is Act 3 Scene 4 of Merchant of Venice. Earlier we have already discussed about Act 3 Scene 3 and Act 3 Scene 2. Actually, this particular scene, Act 3 Scene 4, is the continuation of the past two scenes. In Act 3 Scene 2, we had seen about the Bassanio's casket choosing, and one unfortunate incident we had seen in that particular video, that Antonio's all ships were already wrecked and Antonio was imprisoned for not paying the borrowed amount to Shallow. And in the previous scene we have seen that Antonio was imprisoned. Just continuation of that, we come to Act 3 Scene 4. But we must remember Act 3 Scene 2, in which we had seen that Portia had sent Bassanio to Venice to save the life of Antonio. But here she also wants to go there to save his life. So let us see what happens. Before starting this scene, Act 3 Scene 4, I want to make you remember, if you have not yet subscribed my channel, you must subscribe it so that you will get my video at the earliest and you will be beneficial of that. And if you like this class, if you like this video, you must press the like button and share the link to your friends as much as possible. Now we are coming to the line. I hope everybody is prepared and he has his book already in front of him. This scene is taking place in Belmont. This is a room in Portia's house, and here the characters are Portia, Nerissa, Lorenzo, Jessica and Balthazar. All are the known character. Only Balthazar is here the new one. Balthazar was the servant of Portia. Now coming to the line. Lorenzo says here, Madam, although I speak it in your presence. Madam, although I speak it in your presence. Who is referred to Madam here? Here Madam is referred to Portia. Lorenzo says to Portia, although I speak it in your presence, मैं आपके सामने में ये बोल रहा हूँ you have made noble and true conceit, कि आपको बिल्कुल अच्छी समझ है. Conceit का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. So you have a true understanding, you have a true conceit, you have a noble conceit of God like amity. किसके बारे में ट्रू अंडरस्टैंडिंग है? ऑफ गॉड लाइक एमिटी. एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप. तो ये जो गॉड लाइक फ्रेंडशिप है, किसके किसके बीच में है? एंटोनियो और बेसेनियो के बीच में जो फ्रेंडशिप है, इसकी आपको पूरी समझ है. विच अपीयर्स मोस्ट स्ट्रांगली इन बियरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड, जो आपने निभाई है ये दिखाकर कि आप शादी के दिन भी अपने हस्बैंड से दूर रह सकते हैं, उसके एब्सेंस में रह सकते हैं. उसको बियरिंग का मतलब क्या होता है? इंड्योर करना. सो इन द वे यू इंड्योर द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड, किस तरह से आप अपने लॉर्ड के एब्सेंस को इंड्योर कर रहे हैं, वो ये बात दिखाता है कि आपको फ्रेंडशिप के बारे में कितनी अच्छी समझ है. बट इफ़ यू न्यू, लेकिन लोरेंजो कहता है इफ़ यू न्यू, अगर आप ये जानती होती, टू हुम यू शो दिस ऑनर, कि आपने जो सम्मान यहाँ पर दिया है वो किस को दिया है. कौन सा सम्मान? बेसेनियो को एंटोनियो को बचाने के लिए भेजा गया है एट एनी कॉस्ट, इवन 20 टाइम्स ऑफ द मनी बोरोड का जो पावर यहाँ पर पोर्सिया ने दिया है बेसेनियो को, तो एक ऑनर देना है. तो कहता है कि अगर काश आपको ये पता होता कि आपने ऑनर किसको दिया है. हाउ टू ए जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ, आपने जो रिलीफ भेजा है बेसेनियो के रूप में, वो कितना बड़ा जेंटलमैन है जिसके लिए आपने रिलीफ भेजा है. और आपको ये पता होता कि आपका जो हस्बैंड है वो और एंटोनियो कितना गहरा दोस्त है. हाउ डियर ए लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड, कि आपका हस्बैंड मेरे लॉर्ड का कितना बड़ा लवर है, मतलब कितना बड़ा फ्रेंड है. ये तीनों चीज़, कौन कौन सा चीज़? कि आपने ऑनर किसके लिए भेजा है. काश आपको ये पता होता, काश आपको ये पता होता कि आपने कितने बड़े जेंटलमैन के लिए भेजा है. और काश आपको ये पता होता कि आपका हस्बैंड मेरे लॉर्ड यानी एंटोनियो का कितना सच्चा दोस्त है. अगर ये सारी बातें आपको पता होती तो शायद क्या होता, यहाँ पर लोरेंजो कहता है कि आई नो यू वुड बी प्राउड ऑफ द वर्क, तो आपको अपने इस काम पर और गर्व होता,
और आप प्राउड फील करते हैं, देन कस्टमरी बॉन्डिंग कैन इन्फोर्स यू। कस्टमरी बॉन्डिंग मतलब होता है यूजुअल जेनरोसिटी, यूजुअल एक्ट ऑफ जेनरोसिटी। तो यदि किसी का अच्छा करते हैं तो जो हमें अच्छा लगता है, जो मन को अच्छा लगता है कि हम किसी का अच्छा किया, तो मन में एक तरह से अच्छी फीलिंग्स आती है। तो अगर ये मालूम हो कि मैंने इस ऐसे महान इंसान के लिए काम किया, तो शायद अपने काम पर आपको और भी ज़्यादा गर्व होता, आप और प्राउड फील कर सकती। इन रिप्लाई टू दिस पोर्सिया सेज, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड। मैं कभी किसी का अच्छा करके पछताती नहीं हूँ, नॉर शैल नॉट नाउ, और अभी भी मुझे इस काम पर कोई पछतावा नहीं। फॉर इन कॉम्पेनियंस, क्योंकि मुझे मालूम है कि कॉम्पेनियंस दैट डू कॉन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर, कि जो कॉम्पेनियन होता है साथी, दोस्त, जो एक साथ कन्वर्स करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, वो साथी जो एक साथ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, वो सोल्स डू बियर एन इक्वल योक ऑफ लव, उनके सोल में, उनके दिल में बराबर बराबर का प्यार होता है। कितना बराबर? जैसे योक ऑफ लव, योक यहाँ पर मतलब है कि जैसे कोई बैलगाड़ी को दो बैल इक्वल ताकत के साथ खींचता है, जैसे दोनों बैल का इक्वल सपोर्ट चाहिए, वैसे ही दो दोस्तों के बीच में जो प्यार होता है वो एकदम इक्वल होता है। देयर मस्ट बी नीड्स ए लाइक प्रपोर्शन, और दोस्ती के लिए क्या जरूरी है, दोस्ती किसके किसके बीच में हो सकती है। यहाँ पर पोर्सिया इस बात को क्लियर करती है कि दोस्ती उसी के बीच में हो सकती है जो कैसा होना चाहिए, लाइक प्रोपोर्शन ऑफ लाइनमेंट्स, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में जिन दोनों के बीच में एक जैसा फीचर्स हो, ऑफ मैनर्स, दोनों का मैनर एक जैसा हो, ऑफ स्पिरिट, जिनका स्पिरिट, उनकी जो डिस्पोजिशन वर्क है वो एक जैसी हो। तो अगर ये तीनों चीज़ एक जैसी होगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनर और स्पिरिट, तब ये दोस्ती टिक सकती है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती जो एक बहुत ही सच बोलता है, एक झूठ बोलता है। तो दोस्ती के लिए दोनों का बराबर बराबर का एक जैसा मैनर, एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स और एक जैसा स्पिरिट होना चाहिए। और विच मेक्स मी थिंक, और चूंकि इन दोनों के बीच में दोस्ती है तो ये सोचने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है कि ये एंटोनियो क्या होगा, बीइंग द बुजम लवर ऑफ माई लॉर्ड, ये एंटोनियो जो मेरे लॉर्ड बेसेनियो का इंटीमेट फ्रेंड है। बुजम लवर का मतलब होता है इंटीमेट फ्रेंड, तो जो इंटीमेट फ्रेंड है मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड, वो भी मेरे लॉर्ड यानी बेसेनियो जैसा ही होगा। एंड इफ इट बी सो, और अगर ऐसा है तो हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव बिस्टोर्ड, तो कितना कम पैसा, कितना छोटा अमाउंट मैंने खर्च किया है इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल, अपने जैसे सोल को खरीदने के लिए। अपने जैसे सोल का मतलब है कि पोर्सिया और बेसेनियो की शादी हुई है, तो पोर्सिया का सोल किसके जैसा हो गया, बेसेनियो के जैसा, और बेसेनियो और एंटोनियो की दोस्ती है तो बेसेनियो का सोल एंटोनियो जैसा है। इसका मतलब पोर्सिया और एंटोनियो का सोल लगभग एक जैसा है। तो ऐसे महान इंसान, ऐसे महान आत्मा वाले इंसान के लाइफ को बचाने के लिए जो कॉस्ट मैंने खर्च किया है वो बहुत ही कम है। किससे? फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेलिस क्रूएल्टी, शैलोक के इस हेल लाइक क्रूएल्टी से बचाने के लिए मैंने जो अमाउंट भेजा है ये बहुत ही कम है। दिस कम्स टू नियर प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन ये क्या, ये तो मैंने अपनी ही तारीफ कर दी। पोर्सिया कहती है अरे ये तो मैंने अपनी आप तारीफ कर दी, इसीलिए कहता है देयरफॉर नो मोर ऑफ इट, अब इसके बाद और मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा। लाइक हियर, इसलिए हियर अदर थिंग्स, नाउ ही सेज टू लोरेंजो, ही सेज टू लोरेंजो हियर अदर थिंग्स, अब और सुनो, उस दूसरी बातें सुनो। लोरेंजो से कहती है कि लोरेंजो आई कमिट इन टू योर हैंड्स द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस, मेरे घर का जितना भी चार्ज है, मैनेज का मतलब होता है मैनेजमेंट, हस्बेंड्री मतलब कंट्रोल, तो मेरे घर का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। आई कमिट इन टू योर हैंड्स, मैं तुम्हारे हाथ में डाल रहा हूँ क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ माई हाउस। कब तक? अनटिल माई लॉर्ड्स रिटर्न, तब तक के लिए जब तक कि मेरा लॉर्ड यानी बेसेनियो वापस नहीं आ जाता। फॉर माइन ओन पार्ट, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव टू आर्ड हैवन ब्रेथ सीक्रेट बो, मैंने गॉड को साक्षी मानकर एक शपथ ली है। ब्रेथ मतलब मेड, सीक्रेट बो मतलब गुप्त रूप से शपथ लेना। टू लिव इन प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन, कि मैं प्रेयर और कॉन्टेम्पलेशन में अपना लाइफ बिताऊंगी। प्रेयर में यानी प्रेयर करूंगी, कॉन्टेम्पलेशन मतलब मेडिटेशन करूंगी। ओनली अटेंडेड बाय नेरिसा देयर, और मेरे साथ वहाँ कोई नहीं होगा सिवाय मेरी मेड सर्वेंट नेरिसा के। तब तक, कब तक के लिए? कहता है यहाँ पर अनटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड्स रिटर्न, तब तक के लिए जब तक कि
इसका हस्बैंड या नेरिसा का हस्बैंड ग्रेसियानो और मेरा लॉर्ड बेसेनियो वापस नहीं आया था वेनिस से। एक्चुअली देयर इज ए मोनेस्ट्री 2 miles ऑफ, यहाँ से 2 मील दूर पर एक मोनेस्ट्री है, एंड देयर विल अबाइड, हम लोग वहीं पर रहेंगे। आई डू डिजायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन, लेकिन जो टास्क मैंने दिया है तुमको, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करोगे। द विच माई लव, और ये टास्क मैंने जो दिया है इसका 2 कारण है। एक कारण है माई लव, मेरा प्यार, प्यार मतलब यहाँ विश्वास, मेरा तुम पर विश्वास है इसलिए मैंने अपने घर की चाबी तुम्हें दी है। एंड सम नेसेसिटी, और मेरी कुछ ऐसी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत भी है। नॉलेज अपॉन यू, इस कारण से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर डाल रही हूँ। लोरेंजो कहता है मैडम विथ ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स। लोरेंजो इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग द टास्क व्हाट हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय पोर्सिया, और ये कहता है कि पूरे दिल के साथ आपने जो टास्क मुझे दिया है मैं उसको ओबे करूँगा और आपके सारे कमांड्स को अच्छी तरह मैं फॉलो करूँगा। नाउ पोर्सिया सेज माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड। पीपल का मतलब यहाँ है सर्वेंट। मेरे घर के सारे नौकर चाकर अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज़ माई माइंड मीन्स व्हाट इज़ माई इंटेंशन, एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका, और ये सारे नौकर चाकर मेरे जितने भी हैं वो क्या करेंगे, एक्नॉलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेसेनियो एंड माई सेल्फ। वो मेरे और बेसेनियो के एब्सेंस में तुम्हें ही और तुम्हें और जेसिका को वही रिस्पेक्ट देंगे जो रिस्पेक्ट वो मुझे देते हैं। एंड सो फेयरवेल, सो गुड बाय टू यू टिल वी शैल मीट अगेन। तब तक के लिए गुड बाय, जब तक के लिए हम यहाँ पर दोबारा नहीं आ जाते। लोरेंजो कहता है यहाँ पर फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू, क्योंकि लोरेंजो यहाँ पर विश करता है उसके शादी के लिए और कहता है यहाँ पर कि फेयर थॉट्स मतलब गुड थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स, आपको आपकी ज़िंदगी में हैप्पी आवर्स आए, गुड थॉट्स आए, इसके लिए दुआ करता है। जेसिका ऑल्सो विशेज एंड सी सेज हियर आई विश योर लेडीशिप ऑल हर्ट्स कॉन्टेंट, और जेसिका भी यहाँ पर पोर्सिया को विश करती है और कहती है कि आपका दिल पूरी तरह से कॉन्टेंटेड हो, पूरी तरह से संतोष हो, खुशी हो आपके दिल में, इसके लिए मैं प्रे करती हूँ। पोर्सिया कहती है थैंक यू फॉर योर विश, तुम दोनों ने मेरे लिए जो विश किया उसके लिए थैंक यू, एंड आई एम वेल प्लीज टू विश इट बैक ऑन यू, और यही विश मैं तुम दोनों के लिए भी करती हूँ। एंड फेयर यू वेल जेसिका, जेसिका गुड बाय टू यू, और इस तरह से यहाँ पर जेसिका और लोरेंजो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर बचा हुआ है वो है बाल्थाजर, जिसके साथ पोर्सिया कन्वर्सेशन है और नेरिसा तो है ही। सो नाउ सी सेज टू बाल्थाजर, अब यहाँ बाल्थाजर क्योंकि जेसिका और लोरेंजो यहाँ से जा चुका है। नाउ सी सेज टू बाल्थाजर एज आई हैव एवर फाउंड दी ऑनेस्ट ट्रू, जैसा कि अक्सर मैंने तुमको जो भी टास्क आज तक दिया है उसको तुमने बड़े ही ऑनेस्टी के साथ बड़े ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। सो लेट मी फाइंड दी स्टिल, इसलिए जो काम आज मैं तुमको देने जा रही हूँ उसमें भी तुम उसी तरह ऑनेस्ट और कामयाब होगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। टेक दिस सेम लेटर, और उसको लेटर देती है और कहती है टेक दिस सेम लेटर एंड यूज द ऑल द इंडिवर ऑफ ए मैन इन ए स्पीड टू पाडुआ। ये लेटर जो मैं तुमको दे रही हूँ इसको लेकर तुम जितना पॉसिबल स्पीड हो सके, जितना तुम तेज़ी से जा सको, तुम चले जाओ, कहाँ पर, पाडुआ चले जाओ। एंड वहाँ पर क्या करोगे, सी द रेंडर दिस इनटू माय कजन्स हैंड, वहाँ पर मेरा कजन रहता है जिसका नाम है डॉक्टर बेलेरियो, ये लेटर जाकर तुम मेरे कजन डॉक्टर बेलेरियो को दे देना। एंड लुक व्हाट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डॉट गिव दी, और वहाँ पर देखना कि वो कौन सा गारमेंट्स, वो कौन सा नोट्स तुम्हें देता है, वो तुम लेकर यहाँ पर आ जाना। ब्रिंग देम आई प्रे दी, लेकिन हाँ मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे विथ इमेजिन्ड स्पीड अनटू द ट्रांसलेट, तुम इमेजिन्ड स्पीड के साथ जाओ, इमेजिन्ड स्पीड के साथ जाओ। कहाँ पर और कहाँ पहुँचोगे, इमेजिन्ड स्पीड का मतलब है ऑल पॉसिबल स्पीड के साथ तुम जाओ एंड कम अनटू द ट्रांसलेट, मतलब ट्रांसलेट के पास आ जाना, मतलब लैंडिंग प्लेस के पास आ जाना। कहाँ पर, कौन सा लैंडिंग प्लेस, टू द कॉमन फेरी व्हिच ट्रेड्स टू वेनिस, जहाँ से वेनिस के लिए जहाज़ खुलती है। वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स, इसलिए यहाँ पर पोर्सिया कहती है बातों में समय बर्बाद मत करो, बट गेट दी गॉन, तुम जल्दी जाओ, आई शैल बी देयर बिफोर दी, मैं तुमसे पहले ही उस ट्रांसलेट के पास यानी उस फेरी घाट के पास पहुँच जाऊँगी। बाल्थायर नाउ रिप्लाइज हियर, बाल्थायर सेज टू पोर्सिया मैडम आई गो विथ ऑल कॉन्वेनिएंट स्पीड, मैडम मैं वहाँ पर ऑल कॉन्वेनिएंट स्पीड का मतलब है ऑल पॉसिबल स्पीड, मीन्स एज फास्ट एज आई
कैन, मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से वापस आऊँगा। एंड आफ्टर दिस वो यहाँ से बाल्थायर चला जाता है। नाउ पोर्शिया सेज कम ऑन नेरिसा, नाउ पोर्शिया सेज टू नेरिसा कम ऑन, आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू येट नो नोट ऑफ, मेरे हाथ में तुम्हारे लिए भी कुछ काम है, शायद तुम उस काम के बारे में नहीं जानती, मैं तुमको बताऊंगी, लेकिन विल सी आवर हस्बैंड्स बिफोर दे थिंक ऑफ अस, मुझे पूरी उम्मीद है कि विल सी आवर हस्बैंड, हम लोग अपने अपने हस्बैंड्स को देखेंगे इससे पहले कि वो लोग हमारे बारे में सोचें, हम लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड्स को यहाँ पर देखेंगे, ऐसा मैंने प्लान बना रखा है। नेरिसा कहती है शैल दे सी अस, क्या वो लोग भी हमें देखेंगे? पोर्शिया कहती है दे शैल, हाँ नेरिसा वो लोग जरूर देखेंगे, बट इन सच ए हैबिट, हैबिट का मतलब यहाँ ड्रेस है, लेकिन वो लोग हमें ऐसे ड्रेस में देखेंगे दैट दे शैल थिंक वी आर अनअकॉम्प्लिश्ड विद दैट वी लैक, लेकिन वो देख कर हमें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ड्रेस में रहेंगे कि वो हमें कुछ और समझेंगे। वो एक्चुअली पोर्शिया और नेरिसा यहाँ पर मेल ड्रेस में होगा, और ये कहती है पोर्शिया कि हम लोग तो मेल ड्रेस में होंगे तो वो लोग हमें मेल समझेंगे, पुरुष समझेंगे, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर है नहीं, तो वो चीज़ हमारे अंदर, जो चीज़ हमको समझेंगे मेल, वो उसकी हमें हमारे अंदर नहीं होगी। आई विल होल्ड दी एनी वैगर, और ये कहती है नेरिसा से कि मैं तुमसे किसी भी तरह का वैगर मतलब बेट यानी शर्त लगा सकती हूँ कि व्हेन वी आर बोथ अकॉर्डेड लाइक यंग मैन, जब हम दोनों, अकॉर्डेड का मतलब होता है ड्रेस्ड अप, जब हम दोनों मेल ड्रेस पहनेंगे या लड़के का ड्रेस पहन लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ ये बेटिंग कर सकती हूँ, आई विल प्रूव द प्रेटियर फेलो ऑफ द टू, कि हम दोनों में हम तुमसे ज़्यादा सुंदर लगेंगे। एंड इतना ही नहीं, आई विल वियर माई डैगर विद द ब्रेवर ग्रेस, मैं अपने पास में डैगर रखूँगी, डैगर मतलब ये एक तरह का बिग नाइफ, और किस लिए? अपने बोल्डनेस को बचाने के लिए, अपने आप को बोल्ड रखने के लिए अपने पास में मैं डैगर रखूँगी। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, और चूंकि मैं तो आदमी के ड्रेस में रहूँगी तो मैं ऐसा आवाज़ बोलूँगी कि जो मैन एंड बॉयज़ के बीच में, जब मैन बॉयज़ का वॉइस जब ट्रांसफॉर्म होने लगता है मैन के रूप में, वॉइस उसका मैन वाला बोल्ड वॉइस होने लगता है, तो वो जो बीच का आवाज़ होता है, तो चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, तो बीच वाला जो मैन आवाज़ होती है फ्रॉम बॉयज़ टू मैन का बीच का जो होता है, वैसी आवाज़ रखूँगा विथ रीड वॉइस, एकदम श्रिल वॉइस, एंड टर्न इनटू मिन्सिंग स्टेप्स, और टर्न टू मिन्सिंग स्टेप्स इनटू ए मैनली स्टाइल। और जैसे लेडीज लोग में और लेडीज जेंट्स में क्या अंतर है? लेडीज़ की आवाज़ होती है श्रिल होती है, जेंट्स का आवाज़ मोटा होता है, लेडीज छोटे छोटे कदमों से चलती है, जेंट्स बड़े कदमों से चलता है। तो यहाँ पर ये कह रही है पोर्शिया कि जो हमारा मिन्सिंग स्टेप्स है, मतलब जो स्मॉल स्टेप्स है, उस स्मॉल स्टेप्स को मैं क्या करूँगी, दो छोटे छोटे स्टेप्स को मैनली स्ट्राइड, मतलब एक आदमी जैसा बड़े स्टेप में कन्वर्ट करके चलूँगी। और तीसरा चीज़, स्पीक ऑफ फ्रेज, फ्रेज का मतलब है फाइट्स, वहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात करूँगी। कैसे? लाइक ए फाइन ब्रैगिंग यूथ, जैसे कोई ब्रैगिंग यूथ करता है, ब्रैगिंग यूथ का मतलब बोस्टफुल यूथ, जैसे डींग हाँकने वाला कोई लड़का कभी अपने बारे में कहता है कि मैंने इसको मार दिया, उसको ये कर दिया, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर मैं भी उसी तरह बातें करूँगी। एंड टेल क्विंट लाइज, और एकदम झूठ बोलूँगी, क्विंट लाइज एकदम फैंसीफुल लाइज, एकदम सजा हुआ एकदम झूठ बोलूँगी। हाउ ऑनरेबल, क्या झूठ बोलूँगी उसका एक एग्जाम्पल दे रही है यहाँ पर। हाउ ऑनरेबल लेडीज सॉट माई लव व्हिच आर डिनाइंग दे फेल सिक एंड डाइड, किस तरह से ऑनरेबल लेडीज मेरे प्यार पर मरती हैं, और जब मैं उनको डिनाई कर देती हूँ तो दे फेल सिक, वो बीमार पड़ जाती हैं और मर जाती हैं। आई कुड नॉट डू विथ और मैं कुछ नहीं कर सकती। देन आई विल रिपेंट एंड विश फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड देम, तो मैं सिर्फ एक ही उम्मीद करती हूँ कि काश वो मेरे कारण न मरी होती। तो ये एक झूठ हो गया। ऐसे में एक झूठ नहीं, 20 ऑफ दिस पुनी लाइज आई विल टेल, एक नहीं मैं 20 झूठ दिमाग में सोच कर रखी हूँ, मैं वैसा झूठ वहाँ पर बोलूँगी। दैट मैन शैल स्वेयर, मेरे उस झूठ को सुनकर मैन शैल स्वेयर दैट आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल आफ्टर 12 मंथ, कि मैं अभी स्कूल से डिसकंटिन्यू होना मेरा सिर्फ अभी 12 मंथ यानी 1 साल ही हुआ है। आई हैव विद इन माई माइंड ए थॉट रॉ ट्रिक्स ऑफ दिस ब्रैगिंग जैक्स, इस तरह से जो ब्रैगिंग जैक्स मतलब डींग हाँकने वाला लड़का जिस तरह से ट्रिक करता है, वैसा ट्रिक मैं यहाँ पर बार बार ऐसा 20 ट्रिक्स मैंने 1000 ट्रिक्स मैंने ऐसा सोच कर अपने दिमाग में रखा हुआ है। विच आई विल प्रैक्टिस, जो मैं डिस्प्ले करूँगी वहाँ पर मैं वहाँ पर लोगों के सामने डिस्प्ले करूँ, दिखाऊँगी।
लेकिन बट कम, वो नेरिसा से कहती है बट कम, तुम आओ, आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस, ये सारा प्लान मैं तुमको समझाऊंगी। कब? व्हेन आई एम इन माई कोच, जब मैं कोच में होंगी। कोच का मतलब जब मैं तांगे गाड़ी में बैठूंगी, घोड़े गाड़ी में, तो मैं तुमको रास्ते में सारा प्लान समझा दूंगी। विच स्टेज फॉर, वो तांगा गाड़ी क्या है? जो इंतजार कर रहा है पार्क के गेट पर। एंड देयर फॉर हेस्ट अवे, इसलिए चलो जल्दी चलते हैं। फॉर ए मस्ट मेजर 20 माइल्स अवे, क्योंकि हमें आज 20 माइल्स ट्रेवल करना है। कहाँ पर? यह बेलमाउंट से वेनिस 20 माइल्स हमें सफ़र करना है। तो चलो यहाँ से जल्दी हम लोग यहाँ से चल पड़ते हैं। और इस तरह से ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल ऑफ दिस सीन एंड दे विल बी able to understand each and every line very clearly. If they have any problem, they may ask me in the comment box. Okay, thank you very much.